So welcome, ladies and gentlemen, and guests of all genders and ages. We are gathered here for the launch of a very special initiative that's intended as much more than just an initiative, because, we are doing this for several years. That's the hope. It doesn't end over here. That's the key goal. We hope to make this a movement, in fact, across the country. Samarth by Hyundai, mobility, accessibility, and inclusivity for all, because the disabilities that some of us have to live with should not define how we live or what we can or cannot achieve. And who better than to talk about that than Nitin Gadkari, the Minister for Road Transport and Highways. Thank you, sir, very much for spending some time with us. One of the biggest concerns that people raise across the country is accessibility on buses. Now, there are some statistics that point out that only 9% of buses in the country are accessible to those with disabilities. Now, there's only so much that the center can actually do, but do you believe that this is a problem that needs to be addressed? You are absolutely correct. This is one of the problems because of our bus code. Particularly in the Western countries and USA, they are very strict about it. But now we have taken the decision about the bus code. Presently in India, we have got 150,000 buses. Number of accessible buses, 46,500, that is 32%. But still, as far as the buses are concerned, I am not satisfied about it. Somewhere in the buses, like in Pune and even in some city, it is very difficult to, the way in which the doors and other things are not appropriate. Number of fully accessible buses is 9,239, that is 20%. And government is committed to make 25% of government-owned public transport vehicles fully accessible. Right. And it is the duty of the government, because this is the population. Average 4% of the people are physically handicapped, because it is really, as far as the awareness in the Western country, the USA, their picture is totally different. But in India, after 2014, when Modi ji taken charge as the Prime Minister, our government has given special priority for that. आपने बसेस की बात की. आज हम हंडे द्वारा समर्थ एक कार्यक्रम, एक पहल की शुरुआत कर रहे हैं, और उस ओर अपने आज दिन भर अपने जो दिव्यांग हैं, अपने विकलांग हैं, उनसे बातचीत की, उनसे चर्चा की. आपका जो मंत्रालय है, क्योंकि हमारी चेष्टा भी यही है कि उनकी राह जीवन की सुगम हो, और आपके मंत्रालय की भी कोशिश यही रही होगी कि उनका जीवन सुगम हो घर से बाहर निकलते ही. किस ओर आपका मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, क्या आप हमसे साझा कर सकते हैं? देखिए, आप हमको मदद करिए. मुझे जो भी ऐसे लोग अप्रोच होते हैं, कभी उनके आंखों में प्रॉब्लम होता है, किसी को हाथ नहीं चलता, किसी का पैर नहीं चलता, वो नीचे से ब्रेक नहीं लगा सकता, मैं धन्यवाद दूंगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कि 1,47,000 ऐसी कार है कि जो स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए डिज़ाइन की गई है. और जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे बहुत बार केसेस आते हैं कि क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के और हमारे दोनों के साथ है, तो आरटीओ ने भाई लाइसेंस नहीं दिया, तो फिर हम उसके ऊपर उपाय ढूंढते हैं. और ये 9 साल में मैं इसका मंत्री हूँ और मैं विशेष रूप से संवेदनशील हूँ. और मैं आपको कहूँगा कि जो भी दिव्यांग है, ऐसा है जिसको लाइसेंस नहीं मिला है, जिसका प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के हैं. किसी के दोनों पैर भी काम नहीं कर रहे, किसी के एक हाथ काम नहीं कर रहा है. तो हम लोग हर चीज़ पर उपाय ढूंढ रहे हैं, नियमों में दुरुस्ती कर रहे हैं, और उनको लगातार हमको समाज के साथ बराबरी में आने का उनका अधिकार है. ये उनका फंडामेंटल राइट है और हमने उनको मदद करनी चाहिए. हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं. इवन आपकी भी नज़रों में ऐसा कहीं आता है कि भाई दिस इज़ ए प्रॉब्लम जिसके कारण नहीं हो रहा है, तो लगभग अभी तक 9 साल में जितने हैं उतने प्रॉब्लम सॉल्व किए. अगर होगा तो मुझे दीजिए, हम उसके ऊपर वे आउट निकालेंगे और सॉल्व करेंगे. सर, इस इनिशिएटिव के द्वारा हमारी कोशिश ये है कि हम सहानुभूति नहीं, लेकिन लोगों को संवेदनशील बनाएं, अपने समाज को भी साथ लेके चलें. हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है या आपका मंत्रालय है, किस तरह से जागरूकता फैला सकता है कि जो हमारे दिव्यांग हैं या हमारे विकलांग हैं, उनके प्रति हमारा नज़रिया एक समावेशी हो? देखिए, पहला तो इम्पोर्टेंट थिंग है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यानी बड़ा दुख और दर्द का विषय है
हम लोग पूरे विश्व में कहीं भी जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, होटल्स में, 5 स्टार होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, एवरीवेयर दिव्यांगजनों के लिए अलग व्यवस्था है, वो कैसे ऊपर जाएंगे। हमारे पूरे बस ट्रांसपोर्ट में अभी तक जिस प्रकार की सिस्टम थी, कभी इनके बारे में विचार ही नहीं किया गया। और ये जो 9,239 बसेस है, इससे मैं समाधानी नहीं हूँ। अब जो फाइनल कोड जिसका नोटिफिकेशन निकलेगा, इसके बाद हर बस ऐसी होगी जिसमें दिव्यांगजनों का पूरा विचार होगा और उनके लिए पूरी सुविधा होगी। और अभी मैं इसके बाद जो बस में नहीं होगी, वो बस को वो मंजूर वो बन ही नहीं पाएगी, इतने स्ट्रिक्ट नियम हमने बनाए। यही इसी You की heard it जरूरत है first from the minister over here. He acts on what he says, and this is going to change the lives of countless people with disabilities. Gadkari ji, you know, when we talk about opportunities for people with disabilities, we also need to look at it from where we stand in terms of education in this country. And we have some statistics as part of the Samarth initiative. Only 36% of people with disabilities in India are employed. That means more than 60% of people with disabilities do not work. Beyond your ministry, how is it your goal as a political leader to spread the importance of opportunities through education for those with disabilities? एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैंने उज्जैन में एक दिव्यांग पार्क देखा, फिर उससे 3 गुना बड़ा 4 एकड़ जगह पर मैंने एक दिव्यांग पार्क बनाया। उसका कंसल्टेंट उज्जैन से ही है, और वहाँ इतना अच्छा है कि ऑल टाइप ऑफ दिव्यांगन, जहाँ वो ब्रेन लिपि में लिखा हाथ लगाएगा तो उसको समझेगा, ऑल टाइप के इक्विपमेंट्स, उनके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट अलग से, तो दिव्यांग पार्क बनाया। फिर हमारे यहाँ मराठी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खासदार बोलते, खासदार क्रीड़ा महोत्सव, तो अभी वो चालू हो रहा है, जो इनकी भी सहयोग मिलता है उसको। 60,000 प्लेयर खेल रहे हैं और 48 ग्राउंड्स हैं और 53 गेम्स हैं, तो दिव्यांगों के लिए अलग ये होता है। तो अभी मैं 7 एकड़ जगह पर स्पोर्ट्स का केवल दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा ये बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स का बड़ा स्टेडियम बना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हर शहर में कम से कम अलग अलग प्रकार का एक गार्डन, एक स्पोर्ट्स के बड़ी अलग अलग प्रकार के, उनके स्पोर्ट्स अलग है, उनके स्पोर्ट्स के नियम अलग है और उनके भाषा अलग है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इक्विपमेंट्स है वो अलग प्रकार की है। इसमें काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया और स्टडी किया है, और मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, वैसे उनका भी है कि उनके विकास के लिए उनके अधिकारों को विचार करते हुए इन सब प्रकार की फैसिलिटी जो आम लोगों के लिए है, वही फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। और हर शहर में, हर गांव में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसकी संख्या मेरे अंदाज से 4% से ज़्यादा हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये होने से उनको एंटरटेनमेंट होगी, मनोरंजन होगा, उनका पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उनका मोरल बढ़ेगा, उनके म्यूज़िक इक्विपमेंट अलग अलग प्रकार के हैं। और एक बात मैंने देखी अब ये कि जो दिव्यांगजन है वो कोई अच्छा बांसुरी बजाता है, कोई अच्छा वायलिन बजाता है, कोई अच्छा गाता है, तो उनमें भी हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में भी अच्छा काम करते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो दिव्यांग पार्क बनाया उसमें ऐसी स्पेशल रूम्स बनाई कि वहाँ दिन भर वो सुबह आएंगे और शाम तक रहेंगे, और वहाँ वो अलग अलग प्रकार के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में इधर उधर कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, जिसमें आप कह रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट कि उनको वो बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सहानुभूति की ज़रूरत नहीं, उनके अधिकारों की रक्षा की ज़रूरत है। जी, आप जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोगों तक ये बात पहुंचेगी और धीरे धीरे हमारे देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सब प्रकार की सुविधाएं इन सब के लिए प्राप्त होगी। और ये सहानुभूति के रूप में नहीं, ये उनका अधिकार है बराबरी का, और उनको मिलना चाहिए, यही भूमिका इसके साथ रखनी चाहिए। आखिर में एक सवाल सर, जो ये हमारी पहल यहाँ पर चल रही है, 1 साल चलेगी हंडाई द्वारा समर्थ की, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस तरह के इनिशिएटिव से? क्या मिलके हासिल किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ नागपुर में एक दिव्यांग युवा है, वो पैदल भी चलने की छोड़ो, वो एक दोनों पैर नहीं उसको, वो व्हील चेयर पे, उसकी एक स्पेशल चेयर बनी, उसके ऊपर चलता है। उसने एक 20 करोड़ की फैक्ट्री बूटीबोरी एवैडिसी में डाली थी। फैक्ट्री को आग लग गई और जल गई। उसने फिर फैक्ट्री खड़ी की और प्रॉफिट कमा रहा और अच्छा काम कर रहा है और उसको अवार्ड मिल रहा है।
तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि जैसे आपने आज का कार्यक्रम किया है, तो विशेष रूप से ऐसे जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं और अपने जीवन में जो यशस्वी हुए हैं, उनकी स्टोरी अगर आपके माध्यम से अगर जाएगी तो पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लोग आज हैं उनके मन में बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि उनमें बहुत टैलेंट है, केवल उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे उदाहरणों से उनका मनोबल भी बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो सभी क्षेत्र में काम कर सकेंगे। And attitudes will change. Thank you so much, Minister, for being with us. It's always wonderful speaking to you. Before you go, I'd like to invite Mr. Unsu Kim, Managing Director and CEO of Hyundai Motor India, and Mr. Tarun Garg, CEO of Hyundai Motor India, to present Mr. Gadkari with a small memento.